Good afternoon. Who is not here today? Nishik. Nishik has not joined us today. Fine. Let's start. Any doubts? First, let me ask you about the doubts that you have in the chapter. Rectification of errors, basically. Yes. Then I'll start with the projection function. No doubt, sir. Yes, Kirtan. Can you hear my voice? Sir, no doubt.
Just a minute. Hello, can you hear me now? Yes, sir. Okay, बोलो. Doubt है कोई बेटा? No, sir. No doubt. So let's start with the production function. कल मैंने आपको brief idea दिया था what you mean by production and what you mean by production function. मैंने बताया था कि इनपुट में से आउटपुट को जब तब्दील किया जाता है तो we can say that something is production. Now इनपुट का यहाँ पे मतलब मैंने ये भी समझाया था कि it is not just the factors of production, but factors of production से काफी ज्यादा होता है, right? So we can include all the types of raw materials, right, and all the other inputs as well, जो इसको inputs की तौर पे बोला जाएगा. And with the help of those inputs only, we get some outputs, right? So inputs से outputs जब निकलता है, we'll say that's a production is happening. Now production function or technical, functional, or you can say mathematical relationship, right? Input or output के बीच में. So we have understood, right, that let's say there are many inputs I1, I2, I3, I4, I5, I up till IN, then I can say the output of that quantity would be how much? It will be, let's say you can denote by a number called or a variable called Q, right? We also assume that because there are only two, you can say two factors, right? Because in our assumption, what we need to understand, what we need to understand is that there are only two factors or the two-factor production that helps to produce. We can call them as capital and label, and we'll denote by these two inputs as label as L and capital as K. अभी आज हम जो समझने वाले हैं वो पहले ये समझेंगे कि टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन कैसे होते हैं, कितने टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन होते हैं और इसका क्या मायने है, right? What is the importance of all this, right? Let's understand. So let me share my screen with you. I hope can you see this. Types of production function. Now there are basically two types of production function, right? Let me tell you. The first we call as shortened production function, and the second we call them as a long production function. अभी short run और long run क्या है? देखने में ऐसा लगता है in name कि ये कोई time frame है, time period है, right? Short run यानी short समय के लिए और long run यानी लंबे समय के लिए. But no, this is not a any kind of time frame. What it shows is a production function in respect to a particular category. Now, what's a category in here means? It means कि short run हम किसको बोलेंगे? It's a time. See, economics में short run का मतलब कि short time period नहीं होता है और long run का मतलब long time period नहीं होता है. पर आपके पास short time कब तक है और long time कब आप बना सकते हो उस पर डिपेंड करता है. तो प्रोडक्शन फंक्शन में यहाँ पे जब शॉर्ट रन की हम बात करता हूँ तो उसका मतलब ये होता है कि wherein at least one input is variable. So ये प्रोडक्शन फंक्शन ऐसा है जहाँ पे कम से कम एक इनपुट आपका वेरिएबल है. उसका मतलब ये भी होता है कि मिनिमम एक इनपुट आपका फिक्स भी है. So at least one input is fixed and at least one input is variable. It means कि अगर आपको कमाना है शॉर्ट रन में, right? So you cannot change your fixed factors, then you earn more. If you want to earn more, अगर आपको ज्यादा कमाना है, then you need to use the variable factor mode. Now क्या मतलब हुआ कमाने का? Let's say if you want to make a soap, आपको साबुन बनाना है with the help of let's say a machine, and we know that we have two factors. One is called capital, that is machine, and the second is called labor, mazdoor. Now you want to earn more while selling a soap. तो कैसे कमाओगे आप? तो in the short run, because there is at least one factor is going to remain fixed, आपका एक मिनिमम एक फैक्टर तो फिक्स रहने ही वाला है. उसका मतलब ये होगा कि आपको फिक्स फैक्टर्स आप चेंज नहीं कर सकते शॉर्ट टर्म में. तो फिक्स फैक्टर्स इज गोइंग टू रिमेन फिक्स, इट इज नॉट गोइंग टू चेंज ओवरनाइट, राइट? व्हाटएवर यू कैन चेंज इज ओनली द वेरिएबल फैक्टर. अगर आपको कमाना है तो आप सिर्फ वेरिएबल फैक्टर्स से कमा सकते हो. मे बी आप अपने रॉ मटेरियल्स बढ़ा दो तो ज्यादा साबुन बना पाओगे, ज्यादा बेच पाओगे. मे बी आपका लेवल बढ़ा दो, then also you can do that. But you cannot change your machine. Your machine is a fixed factor now, right? So one factor that is remain fixed.
इट इज ऑल्सो नोन एज वेरिएबल प्रोपोर्शन प्रोपोर्शन फंक्शन। क्यों ऐसा नाम क्यों दिया गया है इसको? बिकॉज आप कमा सकते हो सिर्फ वेरिएबल प्रोपोर्शन से ही, आप फिक्स फैक्टर से नहीं कमा सकते। यू कैन नॉट अर्न फ्रॉम फिक्स फैक्टर्स, और यू कैन नॉट चेंज द फिक्स फैक्टर्स एट ऑल। आप जो भी फैक्टर चेंज करोगे वो वेरिएबल फैक्टर्स होंगे। और इसके लिए एक लॉ लागू पड़ता है, और लॉ का नाम है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, और ये शॉर्ट टर्म का लॉ है, राइट। हमारे टॉपिक में यानी हमारे सिलेबस के लिए यही लॉ लागू है। लॉन्ग रन का लॉ लागू नहीं है, यानी हमारे सिलेबस के बाहर है वो, कहने का मतलब। पर समझ तो लेते हैं लॉन्ग रन प्रोजेक्शन फंक्शन होता क्या है। इट इज अ प्रोजेक्शन फंक्शन wherein all inputs are variable, right, and you can change the entire inputs at the same time. उसका मतलब ये हो सकता है कि अगर आपके लिए कोई बाधा रूप नहीं है, आपके लिए कोई भी फैक्टर फिक्स नहीं है, राइट, यू हैव सो मच मनी, you have so much power, you have so much influence that you can change all the factors at one time. It means अगर आपको let's say स्कूल खोलनी हो तो एक साथ 10 स्कूल खोल सकते हो आप, और बंद करने 10 स्कूल बंद भी कर सकते हो। पर ये नॉर्मल आदमी के लिए नहीं है लॉन्ग रन, राइट। अगर नॉर्मल आदमी को, मिडिल मैन को अगर कुछ दुकान खोलनी है, देन ही हैज टू incur some fixed expenses. लॉन्ग रन में ऐसा कोई फिक्स एक्सपेंस जैसी कोई चीज नहीं होती। सो लॉन्ग रन किसके लिए बना है बेसिकली? इफ यू हैव मोर कैपिटल, इफ यू हैव मोर मनी, इफ यू हैव मोर पावर, देन लॉन्ग रन इज फॉर यू, राइट। जहाँ पे आपके लिए कोई भी फैक्टर्स बाधा रूप नहीं है, एवरी फैक्टर इज अ वेरिएबल फैक्टर। इट इज आल्सो नोन एज फिक्स प्रोपोर्शन प्रोपोर्शन फंक्शन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका फिक्स जो फैक्टर्स होते हैं ना, उसको भी आप चेंज कर सकते हो। शॉर्ट टर्म में सिर्फ वेरिएबल प्रोपोर्शन प्रोपोर्शन फंक्शन बोला जाता है, वाई? बिकॉज आप सिर्फ वेरिएबल फैक्टर्स को ही चेंज करके कमा सकते हो। यहाँ पे तो वेरिएबल फैक्टर्स तो वेरिएबल रहेंगे ही रहेंगे लॉन्ग रन में, और फिक्स फैक्टर्स भी वेरिएबल हो जाएंगे। और उसके लिए एक लॉ लागू पड़ता है, एंड लॉ को हम बोलते हैं हम लॉज ऑफ रिटर्न्स टू स्केल, राइट। और ये लॉ लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन के लिए, राइट। दिस लॉ इज फॉर द लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। कंसेप्ट समझते हैं पहले, राइट। पहले ये समझ लो कि ये प्रोडक्शन फंक्शन समझने के लिए प्रोडक्शन के कौन से कंसेप्ट हैं। तो कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट यानी प्रोडक्शन, प्रोडक्ट का कंसेप्ट क्या है? तो सबसे पहला कंसेप्ट है टोटल फिजिकल प्रोडक्ट, या फिर टोटल प्रोडक्ट जिसको हम बोलते हैं। इट इज डिफाइंड एज द टोटल क्वांटिटी ऑफ द गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय अ फर्म with a given inputs during a specific period of time. इसका मतलब ये होता है कि आप कितने गुड्स बना सकते हो, टोटल प्रोडक्शन कितना हो सकता है। दिस इज टोटल, द नेम इटसेल्फ इज टीपी, टोटल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट का मतलब टोटल प्रोडक्शन। इन द शॉर्ट रन, टीपी कैन बी इंक्रीज बाय एम्प्लॉय यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर। अगर शॉर्ट रन में अगर आपको प्रोडक्शन बढ़ाना भी है, उत्पादन बढ़ाना है कहने का मतलब, तो आपको वेरिएबल फैक्टर का यूज करना पड़ेगा। एग्जाम्पल, हमारे गिवन एग्जाम्पल में अगर आपको साबुन बनाना है और आपके पास मशीन है जो फिक्स फैक्टर है, आपके पास लेबर है जो वेरिएबल फैक्टर है, तो आप साबुन कैसे बना पाओगे ज्यादा? मशीन तो फिक्स है, वो तो फिक्स रहेगा। यू कैनॉट इंक्रीज द मशीन्स ओवरनाइट बिकॉज यू आर इन शॉर्ट टर्म। तो इफ यू वांट टू अर्न मोर और इफ यू वांट टू प्रोड्यूस मोर, व्हाट यू नीड टू डू, आपको क्या करना पड़ेगा? आपको वेरिएबल फैक्टर को ज्यादा एम्प्लॉय करना पड़ेगा। ये समझ में आ रहा है सबको? यस। Yes. नेक्स्ट, इन द लॉन्ग रन, टोटल प्रोडक्ट यानी टीपी कैन बी इंक्रीज बाय एम्प्लॉइंग मोर यूनिट्स ऑफ ऑल द फैक्टर्स। टोटल प्रोडक्ट लॉन्ग रन में तो कोई भी फैक्टर से कमा सकते हैं, बट शॉर्ट रन में ऐसा नहीं है। हम यहाँ पे शॉर्ट रन की बात कर रहे हैं, और शॉर्ट रन इज इंपॉर्टेंट, वी आर नॉट गोइंग फॉर लॉन्ग रन। शेप ऑफ टिपिको कैसा होगा? जस्ट अ मिनट, सॉरी। शेप ऑफ टिपिको स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन, इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट्स, then increasing at a decreasing rate, reaches a maximum, and then after that it starts falling. So अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ टिपिको को, so अगर ओरिजिन से अगर मैं देखने जाऊँ, स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन, इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट, सॉरी, increasing at increasing rate, then increasing at a decreasing rate, reaches the saturation, right? And it starts falling. This is how your curve will be like. Right? This is a TP curve. Product or ऐसा होगा कुछ. The shape of TP curve is something like that. Right?
if I want to draw it more clearly in a smooth manner, I'll just draw it like this. This is my TP. Clear है? Let's look at the average product. Now, average product को दूसरा बोलते हैं average physical product. अभी average product का मतलब ये होता है it is the output produced per unit of the variable factor employed. एक variable factor के सामने आपने उत्पादन कितना किया यानी एक लेबर कितना उत्पन्न कर सकता है that is your average product. Average कितना आती है production की, right? So average product says कि on an average अगर मैंने let's say 40,000 यूनिट्स का प्रोडक्शन किया तो ऑन एन एवरेज पर यूनिट का प्रोडक्शन क्या वो कितना हो और उसकी तुलना कैसे की जाएगी सो दैट इज एवरेज नाउ शेप ऑफ एपी कर्व क्या है when you're going to look at the shape of epi curve if I'm going to draw this right on x-axis and y-axis right it starts from the origin increasing at a decreasing rate which is the maximum and it starts falling but यहाँ पे एक चीज और है it can never touch the x-axis it starts falling down right and it still falls नीचे चलता जाएगा पर कभी वो एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा बिकॉज एवरेज कैन नेवर बी जीरो राइट समझ में आ रहा है ये? अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 10,000 यूनिट बनाऊं राइट आई एम प्रोड्यूसिंग 10,000 यूनिट्स राइट और 10 से लेबर को मैं यूज करूं तो एवरेज प्रोडक्ट क्या आएगा 0.0001 बट जीरो नहीं होगा कभी समझ में आ रहा है एपी कर्व इज इन्वर्टेड यू शेप आप देख सकते हो यहाँ पे ये कर्व कैसा है उल्टा यू शेप जैसा है राइट इट इज कॉल्ड इन्वर्टेड यू शेप अगर मुझे स्मूथ कर्व ड्रॉ करना है यहाँ पे तो आई कैन ड्रॉ समथिंग लाइक दिस इज लाइक अ स्मूथ कर्व राइट दिस इज हाउ द एपी कर्व विल लुक लाइक समझ में आ रहा है ये यस Yes, sir. फाइन लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन इट इज अ मार्जिन प्रोडक्ट और you can say in other words is a marginal physical product MPP और MP जो भी बोल सकते हो उसकी व्याख्या क्या है डेफिनेशन is defined as a change in TP resulting from the employment of an additional unit of variable factor. एक वेरिएबल फैक्टर को ज्यादा एम्प्लॉय करने से टीपी में जो चेंज आता है टोटल प्रोडक्ट में जो चेंज आता है वही मार्जिन प्रोडक्ट है राइट तो मार्जिन प्रोडक्ट और कुछ नहीं है पर टीपी का ही जो बदलाव आता है वही एमपी है तो व्हाट इज द शेप ऑफ एमपी एमपी शो का शेप कैसे होगा एमपी का राइजेस इनिशियली रीचेस द मैक्सिमम देन स्टार्ट्स फॉलिंग तो इसका भी शेप इन्वर्टेड यू शेप जैसा है पर थोड़ा अलग है अगर मैं इसको ड्रॉ करूं और स्मूथ कर्व में ड्रॉ करूं तो एमपी का ऐसा नहीं ओरिजिन से स्टार्ट होगा कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है समथिंग लाइक जस्ट अ मिनट दिस इज समथिंग लाइक द एमपी का राइट इट विल राइजेस इनिशियली विच इज द मैक्सिमम फटाफट वो मैक्सिमम पे आ जाएगा और देन स्टार्ट्स फॉलिंग और लोगों बाद में फॉल दिस इज द बिहेवियर टिपिकल बिहेवियर नाउ व्हाई दिस व्हाई नॉट अदरवाइज ऐसा ही क्यों और दूसरा क्यों नहीं आपको ये सवाल अगर होता है तो इसके लिए आपको समझना पड़ेगा ये लॉ राइट शॉर्ट टर्म का ये लॉ समझना पड़ेगा द लॉ है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या बोलता है लॉ इट इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ diminishing returns right so let's understand why this law and what this law proposes क्या लॉ समझाता है हमको statement of the law it states that when some variable inputs are increased keeping other inputs fixed in starting production increases at increasing rate gradually increasing at a diminishing rate and eventually falls और ये लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन का दुनिया में हर जगह देखा गया है right you can see everywhere even at your home also when your mother is working at the school when a teacher is working you can see all this law is happening और ऐसा ही होता है
हमारी बॉडी फिक्स फैक्टर है, ऐसा समझ लो, राइट? जस्ट एन एग्जांपल आई एम गिविंग, एंड डेफिनेटली you tell me it's an economics, so definitely I'm talking about economic example only. Because see, when I'm providing services to you, मैं जब आपको services दे रहा हूँ, तो definitely आपको कुछ मिल रहा है, right? Other than economic consideration. Economic consideration के सामने आपको कुछ मिल रहा है पैसे के सामने. So this is what I am providing. So variable inputs क्या है मेरे? जो मैं आपको लेक्चर देता हूँ वेरिएबल इनपुट्स है मेरे. मैं आपको नोट्स देता हूँ, आपको प्रेजेंटेशन देता हूँ, वेरिएबल इनपुट्स है मेरे. सो अगर मेरे इनपुट को फिक्स करूँ, या फॉर एग्जांपल एक मशीन ले लो जहाँ पे साबुन बन रहा है, राइट? तो अगर साबुन मशीन बहुत अच्छी मशीन है, नई नई मशीन है, और उसमें हम साबुन बना रहे हैं स्टार्टिंग में, वेरी स्टार्टिंग में, तो मटेरियल नाखेंगे तो मस्त के जैसा साबुन बाहर निकलेगा, मस्त वाला, क्योंकि मशीन भी नया है, राइट? कम लोड है, मशीन पे लोड भी नहीं है, और जितना भी हम रॉ मटेरियल डालेंगे साबुन बहुत अच्छा निकलने वाला है. सो स्टार्टिंग में क्या लगेगा आपको? प्रोडक्शन इज इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट, बहुत अच्छे से प्रोडक्शन बढ़ रहा है, बढ़ते रहे, राइट? समझ लो ये मशीन की कैपेसिटी है 2000 साबुन बनाने की, और आपको ऑर्डर मिलता है 1500 साबुन का. ठीक है, आप मैनेज कर सकोगे. तो यू स्टार्ट मेकिंग प्रोडक्शन प्रोडक्शन प्रोडक्शन, 1500 बना दोगे, बाद में और ऑर्डर आया 1700 का आया, 1700 बनाओ, 1800 का ऑर्डर आया, 1800 बनाया, इसे कैपेसिटी 2000 मैं बता दूं वापस. और अगर आपको लेट्स से ऑर्डर आ गया 2200 पीस का, तो क्या होगा पता है? यू कैन मेक अप टू ओनली 2000 यूनिट्स, राइट? सो यू मेक, पर उस टाइम तक मशीन पे ओवरलोडिंग आ गया होगा, बिकॉज इट हैज बीन टोटली फुल्ली लोडेड नाउ. सो प्रोडक्शन जो इंक्रीजिंग रेट जो होता था ना, वो अभी इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट होना चालू हो जाएगा. प्रोडक्शन बढ़ेगा तो सही, 1700 के बाद 1800 भी होगा, 1900 भी होगा, बट वो साबुन बनने की जो स्पीड है ना, वो कम हो जाएगी. देन समझ लो 22 का लॉट आ गया आपके पास, तो आप 2200 साबुन बनाने को सोचते हो, तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, यू नो? ये मशीन थक जाएगा, जितना बना पा रहा है उतना भी नहीं बना पाएगा. प्रोडक्शन उल्टा बढ़ने की बजाय वो गिरने लगेगा. दिस इज व्हाट हैपन. तो अगर आप वेरिएबल इनपुट ज्यादा डालते हो, यानी मशीन एक है और आपने इनपुट्स बहुत डाले स्टार्टिंग में, तो प्रोडक्शन पहले तो बड़ा बढ़ते दरों से, बाद में बड़ा कम घटते दरों से, डिमिनिशिंग रेट से, एंड लास्ट में वो क्या हो जाएगा? fall. अरे सब में होता है, सबकी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है, सब सब जगह पे दिखता है. सो लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन इज अ काइंड ऑफ अ यूनिवर्सल लॉ, जो सभी जगह लागू होता है, राइट? प्रोडक्शन फंक्शन को हम दिखाने के लिए हम ऐसे दिखा सकते हैं, टोटल प्रोडक्ट इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एल एंड के बार. एल क्या है? लेबर. के बार क्या है? कैपिटल, यानी कि हमारी मशीनरी. समझ में आ रहा? यस. इसमें आउटपुट और लेबर का मैंने एक ग्राफ ड्रॉ किया, राइट? और I'll just show you that how the TP look like. पहले increasing rate, increasing at diminishing rate, so this is the saturation, ऊपर टॉप पे जाता है, and then starts falling, right? देखो आप देख सकते हो, मैंने डॉटेड लाइन ड्रॉ की है, राइट? ग्राफ में सेकंड डॉटेड लाइन, ये आपको ये समझा रहा है कि वो इंक्रीज हो रहा है इंक्रीजिंग रेट से. उसके बाद अगर आप देखोगे, राइट, तो ये इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट है. देखो यहाँ पे क्या है? इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट है. यहाँ पे भी इंक्रीज तो हो रहा है, पर रेट कम होगा. बाद में आ जाएगा सेचुरेशन उसका टॉप पे. और अगर आप प्रॉपर मैनेज नहीं कर पाए, तो प्रोडक्शन फॉल भी हो सकता है, राइट? दिस इज द फ्रंट ट्रैजेक्टरी. समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. Now let's understand the law of proportionality. आपको schedule in a graph, right? हाँ, but there are assumptions to this. What are assumptions? और मैंने जैसे बताया, हर एक दुनिया में हर एक जगह पे जहाँ पे फैक्ट्री है, जहाँ पे बिजनेस चल रहा है, प्रोडक्शन फंक्शन लागू पड़ता है. इवन हमारी बॉडी में भी लागू पड़ता है, क्यों नहीं पड़ता, राइट? उसका assumption है नंबर वन, एटलीस्ट वन फैक्टर प्रोडक्शन इज फिक्स एंड वन इज वेरिएबल. कम से कम एक फैक्टर फिक्स होना ही चाहिए, और कम से कम एक वेरिएबल होना ही चाहिए. यानी कहने का मतलब, fixed and variable both are equally important in short term, right? Short term is a period of time, again I'm telling you,
यहाँ पे इकोनॉमिक्स में ऐसा बोला जाता है, शॉर्ट टर्म यानी वो समय है जहाँ पे आपके पास मिनिमम एक फैक्टर फिक्स है और मिनिमम फैक्टर वेरिएबल, राइट। अगर सभी फैक्टर वेरिएबल हो जाते हैं, आपको कोई परवाह नहीं है, तो आप लॉन्ग रन में चले गए, राइट। और इसीलिए मैं बोलता हूँ काफी टाइम कि बड़े बड़े ये जो लोग हैं ना, इंडस्ट्रियलिस्ट, अंबानी, अदानी, राइट, वो 2 साल में लॉन्ग रन में आ जाते हैं। यानी वो लोग बहुत सारी इंडस्ट्रीज खोल लेते हैं, बहुत सारे काम कर लेते हैं। बट इफ यू लुक एट लाइक यू एंड मी, जो ग्रोसरी शॉप लेके एक दुकान लेके बैठे हैं, वो सालों साल तक, राइट, 20-30 साल तक भी वो शॉर्ट रन में रहते हैं। नाउ दिस इज वेयर द डिफरेंस इज। ऑल द डिफरेंट यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स आर आइडेंटिकल। जो भी वेरिएबल फैक्टर की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, राइट, ये अज्यूम किया जा रहा है कि वेरिएबल फैक्टर्स एक जैसे हैं, अलग अलग नहीं, राइट। हमारी थियरी अजम्पशन पे ही बनी थी। अगर हम ये बोल दे कि वेरिएबल फैक्टर सब अलग अलग है, डिफरेंट है, तो क्या हो जाए? यस, एनी गेसेस? तो मैं तो बोलूंगा टेक्नोलॉजी का प्रोडक्शन हो जाएगा, राइट। तो वो तो हम अज्यूम नहीं कर सकते, बिकॉज एक जैसे वेरिएबल फैक्टर से ही आपको आउटपुट प्रॉपर मिलेगा, समझ में आ सकता है। There are no improvements in the art or methods of cultivation. It means there's no technology that you are using. These are the assumption. तो लॉ तभी लागू पड़ेगा जब ये अजम्पशन होगा। अगर ये अजम्पशन चलेगा तो लॉ लागू नहीं पड़ेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये अजम्पशन अच्छे या बुरे हैं, ऐसी बात ही नहीं। मैं बोल रहा हूँ कि लॉ लागू तभी पड़ेगा जब ये अजम्पशन एग्जिस्ट करेंगे। एंड फोर्थ, इट शुड बी पॉसिबल चेंज a little less or little more of the various factors of production. वो ये बोल रहे हैं कि अगर हमको जरूरत पड़े तो हम थोड़ा ज्यादा और थोड़ा कम वेरियस फैक्टर्स को हिला सकते हैं, राइट। ये अजम्पशंस, और इसके ऊपर लॉ ये बताता है आपको कि प्रोडक्शन पहले बढ़ते दरों से बढ़ता है, अगर बढ़ते दरों से कम होता है, घटते दरों से बढ़ता है, बाद में कम होता है, सैचुरेशन पे आता है और देन फॉल होता है। प्रोडक्शन की यही टेक्निक है। लेट्स अंडरस्टैंड द लॉ। This is about schedule. Now look at it. In here, I've drawn one schedule. Now look at me here, the graph, right, of a total product. TP का ग्राफ देखिए ध्यान से, ऑब्जर्व कीजिए। क्या लग रहा है टीपी के ग्राफ को देख के? एटी से कितना हुआ है? 170, 270, 368, 430, 480, and then see here सैचुरेट हो गया 504। उसके बाद देखो नीचे गिर रहा है। आपका ग्राफ भी कुछ हिसाब से ही होगा। यहाँ पे मैंने दो ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश की। योर टीपी ग्राफ इज एग्जैक्टली लाइक दिस। पहले एकदम स्पीड से बढ़ा, राइट, बाद में बढ़ने की स्पीड कम हो गई, सैचुरेशन पे आ गए प्रोडक्शन, एंड देन इट स्टार्ट्स फॉल। समझ में आ रहा है? Yes, sir. नाउ लुक एट एपी, एवरेज प्रोडक्ट क्या है? सो एपी क्या है? टीपी डिवाइडेड बाय लेबर। 80 divided by 1, 80, 170 divided by 2, 85, और 270 divided by 3, 90, likewise। तो आपको एवरेज प्रोडक्ट कैसे मिला? टोटल प्रोडक्शन में से अगर आप लेवल डिवाइड कर दो तो एवरेज प्रोडक्शन मिलेगा, कितना ऑन एन एवरेज कितना प्रोडक्शन हो रहा पर लेबर से, राइट। लुक एट द ग्राफ ऑफ दिस। उसका उसका टॉप कब आ रहा है? 80, 85, 90, 92, एंड देन 80, 60, एंड दिस। इसका टॉप आ रहा है 7वें या 8वें यूनिट पे आ रहा है, इसका टॉप आ रहा है 4थे यूनिट। डोंट यू थिंक इट्स समथिंग वियर्ड कि पहले टॉप ले लेता है? यस, दिस इज द ऑन एन एवरेज। एवरेज प्रोडक्शन की आप जब बात करें तो उसका मतलब ये होता है कि कंपेयर टू द लेबर आपका एवरेज प्रोडक्शन बहुत स्पीड में बढ़ता है, राइट। But after some point of time, average production start decline, as you can see in the graph. तो याद रखिए एपी का टॉप सबसे पहले आता है, उससे भी पहले आता है अगर किसी का टॉप तो वो एमपी, मार्जिनल प्रोडक्ट। जो कह रहे मार्जिनल प्रोडक्ट पहले 80 था, 90 था, बाद में क्या होगा? 100 होगा। तो इससे भी पहले एक टॉप आया, राइट, और उसके बाद गिरता गया। सो इट गोज ऑन नेगेटिव ट्रेजेक्टरी आल्सो, यू कैन सी इन हियर। नेगेटिव भी जा सकता है। मार्जिनल प्रोडक्ट वो बिहेव करता है जैसे हमने देखा था अभी तक। अभी हर एक
हमने देखा मार्जिनल कॉस्ट, देखा मार्जिनल रेवेन्यू, देखा हर एक में क्या करता है मार्जिनल ओवर बिहेव करता है। यहाँ पे भी कुछ उसका काम ऐसा ही है, ओवर बिहेव। उसका मतलब उसके पास प्रेडिक्टिव वैल्यू, क्या होने वाला है वो आपको पता चल जाएगा। यानी मार्जिनल प्रोडक्ट अगर टॉप पे आएगा तो आपको ये पता चल जाएगा कि अभी ये एपी टॉप पे आने वाला है, और एपी टॉप में, एमपी और एपी दोनों टॉप में आएंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि अभी टीपी टॉप में आएंगे। तो मार्जिनल प्रोडक्ट पहले से आपको अंदेशा दे देता है कि क्या होने वाला है, और इसीलिए इकोनॉमिक्स में मार्जिनल चीजों का ज्यादा यूज किया जाता है, राइट। और आप देखोगे एमपी और एपी के ग्राफ को ध्यान से, तो एमपी एपी को कट करके जा रहा है, राइट, टॉप पॉइंट पे से ऊपर से ही कट करके जा रहा है, राइट। दिस इज वन ऑफ द पिक्युलर बिहेवियर ऑफ एपी एंड एमपी, जैसे हमने देखा था एसी और एमसी में, जिसमें मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट को नीचे से कट करके ऊपर जा रही है, यहाँ पे वो ऊपर से कट करके नीचे जा रहा है बेसिकली। समझ में आ रहा है ये? Yes. ये जब एमपी का टॉप आता है तो थर्ड लेवल पे उसका टॉप आ जाता है, उसके बाद टॉप आता है फोर्थ लेवल पे एपी का, जो मैंने लाइन ड्रॉ की, एंड देन द टॉप कम्स एट एथ लेवल टीपी का, राइट। यही लेवल को अगर हम एस्टेब्लिश रखे और इसको डिवाइड कर रहे हैं तीन भाग में, तो आपको कुछ नहीं पर तीन स्टेज मिलेंगे, स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3। सो फर्स्ट से लेकर 4 तक स्टेज 1 है, राइट, 4 से लेकर 8 तक स्टेज 2 है, और उसके बाद स्टेज 3 है। Let's understand stages क्या बोलते हैं हम, or you can say these are the phases of law of linear proportion, what it says. Let's understand. We know that total production is equal to what? Labor और capital का mixing है। AP average product यानी TP upon L, and margin product क्या है? TP of N minus TP of N minus 1. I've drawn the three graph and superimposed in here, तीनों तीन graph, और मैंने line भी draw कर दी है, and I'm just defining it, stage 1, stage 2 and stage 3. मैंने तीनों को define कर दिया। Now you need to see कि what happened at this stage, और कौन सी stage में producer operate करने की कोशिश करेगा। Let's understand. Stage 1 में total product क्या हो रहा है? It is increasing at increasing rate, right? Average product देखो, stage 1 की बात कर रहे हो, right? यानी यहाँ पे देखना। Look at average product, increasing and reaches saturation, and look at the marginal product, starts increasing, and decline also, increasing करने का निकल भी नीचे भी उतर गया। ऐसा होने का रीजन क्या है? सब कुछ बढ़ क्यों रहा है? बिकॉज, और इसी स्टेज को हम स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स बोलते हैं। ये स्टेज में सबको पसंद आता है। ये रीजन ये है क्योंकि फिक्स फैक्टर्स बहुत ज्यादा है आपके पास, राइट, जबकि वेरिएबल फैक्टर्स बहुत कम है। यानी 200 की कैपेसिटी वाले साबुन के मशीन पे आप सिर्फ 20 साबुन बना रहे हो, सो दिस हैपेंस। नेक्स्ट स्टेज 2 आता है, और हर एक प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में स्टेज 2 आता ही। वो बोलता है कि उस टाइम पे होगा क्या? उस टाइम पे आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा पर कम दरों से, डिक्रीजिंग रेट से। एवरेज प्रोडक्ट स्टार्ट्स फॉलिंग, जो आप देख सकते हो, मार्जिन प्रोडक्ट आल्सो स्टार्ट्स फॉलिंग। इसके होने की वजह अगेन सेम है कि फिक्स फैक्टर्स कम है यहाँ पे, क्योंकि आपके पास ज्यादा फिक्स फैक्टर्स है ही नहीं, और वेरिएबल फैक्टर से आप काम ले रहे हो, यानी ज्यादा से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉय रख के आप काम दे रहे हो। तो उससे होगा क्या? प्रोडक्शन बढ़ेगा तो सही, पर वो स्पीड से नहीं बढ़ेगा जो स्पीड से बढ़ना चाहिए। दैट इज व्हाई एवरी प्रोडक्ट कम्स टू दिस स्टेज आल्सो, एंड देन कम्स स्टेज 3 where the production declines, right? So एवरेज प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो वो स्टार्ट्स फॉलिंग, वो गिरेगा। एवरेज प्रोडक्ट की, सॉरी, टोटल प्रोडक्ट की बात करते हैं वो गिरेगा। एवरेज प्रोडक्ट की बात करें तो वो भी गिरेगा। लुक एट एवरेज प्रोडक्ट स्टेज 3, एंड मार्जिन प्रोडक्ट की बात करें तो वो नेगेटिव में चला जाएगा, राइट। ऐसा होने का रीजन, अगर आपको 2000 की कैपेसिटी वाला साबुन की मशीन है, उसमें अगर आप 2200 का पीस का ऑर्डर मिला तो ये होता, ऐसा ही होता है। तो फिक्स फैक्टर्स बहुत कम हो जाते हैं आपके पास, जितने सामने वेरिएबल फैक्टर्स बहुत है। आपके पास रॉ मटेरियल है, मशीन है, तो काम करेगा कौन, राइट? वो मशीन तो है ही नहीं। मशीन की कैपेसिटी जो है वो कम हो गई, या तो बिगड़ गया है, या व्हाट्सएवर।
समझ में आ रहा है ये? Yes, sir. ये क्लियर हो रहा है सबको ये स्टेजेस ऑपरेशन कैसे बढ़ता है, राइट? So these are very important to understand all the three stages with what I've discussed it, right? How it functions in a real life scenario. बोलिए, इसमें किसी को डाउट? No, sir. No doubt. Fine. Anything you want to ask? Yes, beta. Anyone want to ask anything? Okay, fine. So I'll just keep it short in here, right? I'm just closing it in here today. I'm not going to go further. Tomorrow we'll start with a little bit of the correlation standard deviation subs, right? मुझे भी जानना है कि आपको कितना आता है, कितनी formulas आती है, what you know, what you don't know, right? So we'll see it from today, tomorrow. And then 1 or 2 days के बाद मैं आपको break दे दूंगा because it's an examination time. But definitely I'll be always be there with you, right? So tomorrow we'll do statistics. Is it okay? Yes, sir. Okay, fine. And that's it for today. I hope you understand the chapter. If you have any doubt in this chapter, you can let me know. This is it. Clear है सबको? Yes, sir. Okay. Bye, beta. Take care. I'm ending this session now.